Welcome, guys. In this lecture, we're going to start the political system of Turkey. And the first lecture in this, which is very important, multiple times repeated in past papers, is the six arrows of Kemalism, which is also known as the six principles of Kemalism, just Kemalism, Ataturkism, so any of that, or foundational ideology of Turkey. So yeah, this is the outline that we're going to follow. These introduction, the principles, the six principles. These are going to be the six principles: republicanism, populism, secularism, nationalism, statism, reformation, and in that reformation, legal reforms, social reforms, political reforms. Kemalism on political compass, and on Kemalism and Turkey's constitutional law and the critical analysis. So introduction. The ideas and principles of Mustafa Kemal Atatürk, who is the founder of Turkey and the first president of the republic, are termed Kemalism. These principles separated modern Turkey from its Ottoman predecessors. So World War I के बाद जब Ottoman Empire टूटी तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ रियासतें बनी और जो seat of Ottoman Empire था वो Turkey, modern Turkey हमारे सामने आता तो it had these Kemalist principles led to sweeping legal, social, cultural, political, and religious reforms. The constitution of Turkey is based on the unamendable principles of Ataturkism and Kemalism. Unamendable, we'll come to that later. Kemalism is both a modernization philosophy to culturally and socially more modernize the society, and also the founding ideology. ये basically उनकी two nation theory है. और जैसे what अमेरिका में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो सिग्निफिकेंस रखती है उनके लिए बिकॉज उनकी वो फाउंडेशनल आइडियोलॉजी. So number one, context: Ottoman Empire lost World War I. Ataturk believed that the old political and administrative structure of the Ottoman Empire was to blame for failure of the Ottoman Empire. He also believed that the entrenched religious clergy was hampering the progress of Turkish society. So to understand the context, to get a better understanding of it, or to also add certain newer and important and refined points in it, because I don't cover I give you guys additional resources so that I know कि कुछ लोग हैं जो कि इधर से इतने से इक्तफा करेंगे या उनकी मेंटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी इतनी है कि वो चाहेंगे कि हम कॉन्टेक्स्ट में बस ये दो चार बातें लिखें, हम इससे ज़्यादा बातें ना लिखें, वो इतनी बातें लिख लें. लेकिन जो लोग ज़्यादा सीखना चाहते हैं और ज़्यादा डेप्थ में जाके लिखना भी चाहते हैं, इंप्रूव मजीद करना चाहते हैं, खूब से खूब तर बनाना चाहते हैं अपने कंटेंट को, तो वो फिर जो मैं एडिशनल रिसोर्सेज अटैच करता हूँ वो फिर उनका यूज़ भी करें. सो आई अंडरस्टैंड दैट माई स्टूडेंट्स fall on a spectrum from below average to good to excellent, and my lecture should have everything for everyone. So सबके लिए कुछ होना चाहिए. तो वो लोग जो आप में से अभी एवरेज पे हैं और अबव एवरेज और एक्सीलेंट पे जाना चाहते हैं तो वो इन रिसोर्सेज को कंसल्ट किया करें. आपकी वोकेबलरी बेहतर होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, आपको चीज़ों का ज़्यादा पता चलेगा, आपके पास ज़्यादा एग्जांपल्स आएंगी, ज़्यादा कंटेंट आएगा उसी टॉपिक से रिलेटेड. सो आई वुड रिकमेंड यू गाइज पॉज हियर, वॉच दिस 2 पार्ट सीरीज. ये पार्ट 1 है, इसी तरह इसका पार्ट 2 भी यूट्यूब पे पड़ा है अल जजीरा की. ये आपका आधा 20-25 मिनट आपके लगेंगे टोटल, सो दैट यू नो के व्हाट वाज गोइंग ऑन इन टर्की after the fall of Ottoman Empire, and where did Ataturk's ideas come from, और वो क्या सोचता था. These are the 6 principles: statism, secularism, republicanism, reformism, populism, nationalism. I'm political compass पे draw किया, but we'll come to that later. पहले हम देखेंगे ये क्या है ताकि then we know where do we draw this on political compass. If you guys don't know what political compass is, तो मैंने आपको पिछले कुछ lectures में आपको दिया था रिसोर्सेज के 2-3 के पॉलिटिकल कंपास क्या है, पॉलिटिकल कंपास कैसे हैं, आप अपना खुद भी टेस्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का. वेयर डू आई फॉल ऑन पॉलिटिकल कंपास, यू कैन जस्ट गूगल इट. तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने नहीं देखा तो आप देखें ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ आए. सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज रिपब्लिकनिज्म. सॉवरेनिटी बिलोंग्स अनकंडीशनली टू द पीपल. रिपब्लिकनिज्म इज representative democracy. By now you guys know about it. If you guys want to rehash and recap, तो पोल साई 1 के अंदर जो डेमोक्रेसी वाला लेक्चर है उसको देखें. पॉपुलर सॉवरेंटी रादर देन द मोनार्की, जो कि पहले वहां पर कैलिफेट एग्जिस्ट करती थी, तो कैलिफेट की बजाय पॉपुलर सॉवरेंटी डेमोक्रेसी. रिप्लेस द एलिटिस्ट ऑटोमन सोशल ऑर्डर, विल ऑफ द पीपल, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, रोटेशन ऑफ द ऑफिसेस, सेपरेशन ऑफ पावर्स. पॉपुलिज्म. अच्छा, ये पॉपुलिज्म जो मॉडर्न पॉपुलिज्म जिसको हम कहते हैं, दैट्स नॉट व्हाट अतातुर्क मेंट बाय पॉपुलिज्म. इवन दो वर्ड का ओरिजिन वही है, मॉडर्न पॉपुलिज्म का ओरिजिन भी ये है कि जो पीपल ओरिएंटेड होता है, मैस ओरिएंटेड होता है, जो आम जनता की
के इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, उस चीज को पॉपुलिज्म, पॉपुलर से पॉपुलिज्म निकले. लेकिन जो मॉडर्न डे पॉपुलिज्म व्हिच हैज बीन आइडेंटिफाइड विद Trump in the US, Duterte in Philippines, AFD in Germany, National Front in France, Modi in India, Tayyip Erdogan in Turkey now. तो ये वाला जो पॉपुलिज्म है, that's different from what Ataturk was referring to populism. He was referring to the original sense of the word. कि पीपल का डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो ऑफ द पॉलिटिक्स थ्रू रूल ऑफ लॉ, यूनिवर्सल सफरेज हो जो कि 1934 में इंट्रोड्यूस करवाई गई, अ यूनिफाइंग फोर्स बाइंडिंग टर्किश स्टेट एंड पावर ऑफ द पीपल, सॉलिडरिस्टिक ऑपोजिशन टू स्टेटस प्रिविलेज एंड मोनार्की. यानी कि स्टेटस प्रिविलेजेस और मोनार्की की बजाय, कैलिफेट की बजाय एक बड़ी आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग और ऑपोजिशन हो जो कि सॉलिडारिटी में काम करे गवर्नमेंट के और लोगों के साथ मिलके. तो लोग और रियासत मिलके, टर्किश स्टेट और अवाम मिल के करे, ताकि जो अवाम के आम जनता के इश्यूज हैं, आम जनता जो है वो अपने मुताबिक गवर्न कर सके. Then secularism was, Ottoman Empire was obviously a caliphate. It was the leader of the Islamic Ummah of the Islamic world. और आपको पता है खिलाफत मूवमेंट जो चली पाकिस्तान के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसको कायद आज़म ने अपोज किया, गांधी ने सपोर्ट किया, अलामा इकबाल ने सपोर्ट किया. उसके अंदर वो भी इसी चीज पे चली थी कि जो ऑटोमन एम्पायर टूटी थी और मुस्तफा कमाल अतातुर्क उसके बाद आया था. तो वी नो दैट दिस वाज, दे वर द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, बट Mustafa Kemal did not believe in any of this, and he believed in complete separation of religion from state and its affairs. Religious involvement in government को खत्म करने की बात की. और by the way, there's a lot of influence of France on Turkey. और अब अभी सिस्टम जिस तरह हम पढ़ेंगे टर्की का, तो आपको अंदाजा होगा कि टर्किश मॉडल is a lot inspired, is a lot similar to French model in its effect. End of the domination status by the Islamic officials. Islamic officials की बहुत क्लर्जी का बहुत strong rule था ऑटोमन एम्पायर के अंदर, और उसने वो सारा उनकी पावर खत्म की. अडेप्टिंग इंटरनेशनल कैलेंडर, पहले इंटरनेशनल कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं यूज होता था, वो यूज करना शुरू किया. कैलिफेट वाज अबॉलिश्ड एंड द कैलिफ वाज पुट इन एग्जाइल. मदरसास एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वर डिप्राइव्ड ऑफ स्टेट पैट्रोनेज एंड डिनाइड फाइनेंशियल ग्रांट्स. तो पहले इनको बहुत ज्यादा स्टेट पैट्रोनेज और ग्रांट्स मिलती थी, वो भी मुस्तफा कमाल ने खत्म की. Arabic script was replaced by Latin script in 1928. The progressive elite and liberal intelligentsia attributed all ills of the Turkish society to its religious past. Hence, they wanted to modernize on European lines. The established religion of Turkey is Islam was removed from the constitution in 1928. तो constitution जो के पहले जो पहला system था टर्की में ऑटोमन एम्पायर के अंदर, which जो इनिशियली जब इंडिपेंडेंस हुई 1917-16 में टर्की की फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, तो पहले एस्टैब्लिश्ड रिलीजन ऑफ टर्की इज इस्लाम था. लेकिन मुस्तफा कमाल ने अपनी रिफॉर्म्स के जरिए उसको भी चेंज करके 1928 में हथ निकाल दिया. पहले कॉल टू प्रेयर अरबिक में होती थी, जिस तरह पूरी इस्लामिक दुनिया में होती थी. अतातुर्क की रिफॉर्म्स के तहत वो जो इस्लामिक अजान थी वो भी टर्किश में होने लग गई. दिस वाज लेटर अगेन चेंज बैक टू Arabic in 1950. Also because Ataturk was a military general who also participated in the famous Battle of Gallipoli in the First World War, जो कि ब्रिटानिया की तरफ से चर्चिल लीड कर रहा था. तो military came to see itself as the inheritors and the protectors of the Kemalist principles and Kemalist secular ideology. और उन्होंने जो मल्टीपल मिलिट्री कूज किए बाद में, वो भी इसके सेक्युलर ह्यूमनिस्ट कैरेक्टर को, कॉन्स्टिट्यूशन के मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए किए. फोर्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म. तो कॉन्ट्ररी टू व्हाट दी ऑटोमन एम्पायर का जो एक उम्मा का कॉन्सेप्ट था या एक रिलीजियस आइडेंटिटी थी, उससे अगेंस्ट उसने टर्किश आइडेंटिटी पे फोकस किया, नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी पे फोकस किया, rather than creating a religious identity. So a lot of people in Ottoman Empire, in the Ottoman religious clergy and Muslim clergy generally worldwide, believe that there is a tension between nationalism and Muslim identity or Islamic identity. बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस्लामिक उम्मत और नेशन, कौम जो है वो आपस में तज़ाद में. तो इकबाल का शेर है ना, इन ताज़ा खुदाओं में नया सबसे वतन है, जो इसका पैरहन है वो मजहब का कफन है. तो यानी कि इकबाल भी इस चीज से को इंडोर्स करते थे कि जो नेशनलिज्म है दैट इज इनकम्पैटिबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांस मुस्लिम आइडेंटिटी ऑफ उम्मा.
तो अतातुर्क वाज ऑन द ऑपोजिट पिलर ऑफ दैट. ही बिलीव्ड कि ये जो रिलीजियस आइडेंटिटी है ये नहीं होनी चाहिए, टर्किश नेशनलिस्ट आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, क्योंकि तुर्की एक सॉवरेन स्टेट है, और दिस शुड बी फ्री फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंस. और ही बिलीव के जो इंडिजिनस टर्किश वैल्यूज हैं उन पर फोकस करना चाहिए. तो दिस वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ रूसो. This displays pan-Turkinism and Turanism. The folk with which constitutes the Republic of Turkey is called the Turkish nation. तो हमने पढ़ा था कि नेशनल आइडेंटिटीज कैसे क्रिएट की जाती हैं, नेशनल सिंबल्स, वैल्यूज, नेशंस कैसे क्रिएट होती हैं. अगर आपको वो लेक्चर याद है, वेल एंड गुड. इफ यू डोंट, देन रीकैप दैट लेक्चर इन पोल साइ 1. Fifth principle is the principle of statism. This principle of statism is basically के समझें कि एक जैसे कैपिटलिज्म है और एक सोशलिज्म है. तो सोशलिज्म में स्टेट ज़्यादा डोमिनेंट होती है, ऑब्वियसली स्टेट इज मोर डोमिनेंट. कैपिटलिज्म में स्टेट कम डोमिनेंट होती है, हैंड्स डाउन अप्रोच होती है स्टेट की. तो इसी तरीके से जो स्टेटिज्म है वो थोड़े से उसमें सोशलिस्ट टच या सोशलिस्ट फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे. The state to regulate the country's general economic activities. It opposed to private initiative partially. This has a consequence that a lot of the major chunk of production in Turkey are done by the state-owned manufacturing and state-owned enterprises. Revolutionism basically pertains to multiple levels of reforms in the society. Basically उसमें उसका अतातुर्क आइडिया ये था कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स या प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल्स पे फॉलो करना चाहिए. तो तरक्की पसंद, रोशन ख्याली की तरफ जाना ही तुर्की के इंटरेस्ट में है. तो वांटेड टू क्रिएट अ मॉडर्न सिविलाइजेशन, डिड नॉट वांट टू स्टिक इन द पास्ट एंड द ओल्ड ऑटोमन प्रैक्टिसेस फॉर द क्रिएशन ऑफ बेटर ह्यूमन कंडीशंस. इसके अंदर इसकी 3 किस्म की रिफॉर्म्स हैं. ये रिफॉर्मिज्म के अंदर 3 रिफॉर्म्स हैं. सबसे पहली रिफॉर्म इसके अंदर लीगल रिफॉर्म्स हैं. सो ही अबॉलिश्ड द शरिया कोर्ट्स. Islamic law was replaced with European law. Swiss civil court was incorporated as replacement of Muslim personal, family and inheritance law. Civil law के अंदर Swiss civil court ने Islamic law को replace किया. Criminal law में Italian criminal law ने Islamic law को replace किया, और commercial law में German commercial law ने उसको replace किया. Or the principle of rule of law was borrowed from the British legal system that we discussed, has 3 characteristics as discussed by A.B. Dicey. Second are the social reforms. So he tried to remodel and redefine the cultural and social models and patterns in the society. He banned the symbolic Ottoman dress code for both men and women. तो पब्लिक में आप ऑटोमन जो ड्रेस कोड आपने देखा होगा, वो जो अब तो लोगों ने तुरुल भी सीजन देख लिया, या ऑटोमन एम्पायर की डॉक्यूमेंट्री भी है नेटफ्लिक्स के ऊपर एक, तो बहुत सारे लोगों ने वो भी देखी है. तो इसी दे ड्रेस इन अ पर्टिकुलर वे, तो वो बैन कर दिया गया. वेयरिंग ऑफ हिजाब, टर्बन, द टर्किश रेड कैप जो ज़्यादा साहब भी पहनते हैं, वो प्रोहिबिट कर दी गई. वो दिस वाज बैंड. Western style dress code was made mandatory to wear. Women were recruited in civil service on large scale. Women were ensured equal rights and participation was encouraged. The third set, this is C, are administrative and political reforms. Basically, idea of administrative centralism tha, because the territory was divided into new provinces, districts and other smaller units. Different multiple units create kiye gaye, magar the legislature was still unicameral and centralized administration इनकी की जाती थी. Foreign policy of friendly relations with both eastern and western countries अतातुर्क के टाइम में हुई. अगर हम इनको political compass पे place करें तो nationalism is a right wing, slightly authoritarian and right wing idea. Statism automatically is a left wing idea, more close to socialist ideals, but also more authoritarian because state का control होता है. Populism is in the sense which Mustafa Kemal intended, not modern populism. Modern populism would be somewhere around here. So more libertarian, more liberty, more freedom, लोगों की मर्जी से चीजें हों और state उसको enforce करे. तो वो this will be around here. और रिपब्लिकनिज्म और रिफॉर्मिज्म ये बेसिकली आपके सेंटर में लाई करेंगे.
और रिफॉर्मिज्म चूंकि में लिबर्टीज ज़्यादा हैं तो वो लिबर्टेरियन स्केल पे थोड़ा नीचे होगा. Now, Kemalism and Turkey's constitution, basically these 6 principles were eventually solidified in the constitution. 1937 वाले के अंदर तो solidify हुए 14 years after the establishment of the Republic of Turkey. 1960 में जो military coup हुआ और जो बाद में 1980 में military coup हुआ, both were basically coups were done by the military on the grounds के जो 6 principles और arrows हैं Kemalism के. Kemalism की जो philosophy है उसके साथ से रियासत distant हो रही है, तो हमें नया constitution लाने की ज़रूरत है. The text of the new constitutions were approved by popular referendum in each case. जो अभी current constitution है उनका 1982 का, उसका article 1 and article 2, sorry, not article 1, article 2 clause 1 states, the Republic of Turkey is a democratic, secular, social state governed by the rule of law, bearing in mind the concept of public peace, national solidarity and justice, respecting human rights, loyal to the nationalism of Ataturk, and based on the fundamental tenets set forth in the preamble. क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो इसके कुछ नाकिदीन और इसके अंदर दोनों साइड्स हमें नजर आती हैं. जो लोग इसके अगेंस्ट हैं वो कहते हैं इट वाज अ वेरी अग्रेसिव एंड मिलिटेंट फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, कि आपने रिलीजन की रिलीजियस राइट्स वायलेट किए लोगों के, कि लोग एक खास किस्म का ड्रेस नहीं पहन सकते, लोगों की लोग एक खास किस्म की कपड़े पहनने पे वो मजबूर हैं कि वो वेस्टर्न स्टाइल अपनाएं. रिलीजियस क्लर्जी को बिल्कुल ही स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया राइट के जरिए. तो दे क्रिटिसाइज दैट इट्स अ फोर्स्ड वेस्टर्न ओरिएंटेड कल्चरल असिमिलेशन. दोज इन फेवर ऑफ दिस आर्ग्यू दैट दिस मॉडर्नाइज्ड टर्की पोस्ट एम्पायर नेशन बिल्डिंग के लिए एक नई आइडेंटिटी की जरूरत थी और वो बहुत अहम थी. It was a successful model of liberal secular democracy in the Islamic world, probably one of the only liberal secular model. But again, ever since the rise of Justice and Development Party AKP and Tayyip Erdogan, Islamization drive दोबारा से वापस जा रही है. So it's going back to the Ottoman roots and Ottoman values, Islamist values की तरफ वापस जा रहे हैं. So ये दोनों चीजें और दोनों arguments exist करते हैं और ये दोनों चीजें आप इसी तरीके से present करें. फॉर इंस्टेंस इसकी हमें बड़ी पॉपुलर मिसाल ये मिलती है कि अब नेशनल टेलीविजन जो है टर्की का वो पेट्रोनेज दे रहा है ऐसे शोज को जो ऑटोमन हिस्ट्री पे फोकस करें. सो इट्स वुड हैव बीन अनथिंकेबल इन द टाइम ऑफ अतातुर्क. अतातुर्क वुड नेवर अप्रूव ऑफ इट. तो ये आप एक आर्टिकल इस पे लाजमी पढ़ें. एज टर्की चेंजेस सो डज इट्स व्यू ऑफ द फाउंडिंग नेशनल हीरो अतातुर्क. कि जैसे जैसे इस्लामिस्ट गवर्नमेंट जो है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टीज इन पावर, तो हाउ दैट इज इम्पैक्टिंग this idea as well. So that's all in this lecture. And today we're going to cover the 1982 Constitution of Turkey with 2017 constitutional referendum. सबसे अहम चीज़ ये है कि लोग मार्केट में जो किताबें इस्तेमाल हो रही हैं वो यूज़ कर रहे हैं. वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अ वेरी गुड बुक, आई ऑल्सो रिकमेंड दैट बुक. वो यूज़ करते हैं और या वैसे जो पास पेपर्स में देखते हैं क्या सवाल आए हैं, ऑनलाइन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं. लेकिन जो जनरली वो मार्केट में नोट्स, बुक्स, ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये थोड़ी सी आउटडेटेड है. इस पर कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन नहीं हुई. तो 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्की का था वो बहुत ज़्यादा इमेंड हो गया 2017 के कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम के बाद. लेकिन ये किताबें तो पुरानी लिखी हुई हैं, नोट्स तो आपको मिल रहे हैं जो अकेडमीज से या इधर उधर से, वो पुराने हैं. तो उस पर जनरली अपडेटेड स्टफ नहीं है. तो आप को ये चीज़ मिस आउट हो जाती है बहुत ज़्यादा लोगों से, और फिर बहुत ज़्यादा लोग यही चीज़ लिख के पेपर में आ जाएंगे. लेकिन हम इसको अपडेट करके करेंगे तो आपको शायद मार्केट में या जब आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो 2017 की कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम की चीज़ें अलहदा मिल जाएं. लेकिन जब जनरली भी अब सवाल आएगा 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन पे, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर के ऊपर, तो वो अब रेफरेंडम के बाद जो नया निज़ाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उसके तहत उसका जवाब देना. And you will see that a lot of people will make this mistake. A lot of people will do it in the old-fashioned way and would not have updated their content based upon that amendment. So this is going to be the outline. We're going to discuss the constitution के salient features. So you see, जैसे ये है parliamentary system था पहले यहाँ पे जब हम पहले करते थे इसकी तैयारी, but now it's presidential system. So I'm also going to refer to कि पहले क्या सिस्टम था पार्लियामेंट्री और कैसे वो अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट हुआ. And then we're going to separately discuss 2017 Turkish constitutional referendum as well. सबसे पहले, this is the fourth constitution of Turkey since 1921. It was incorporated after the military coup of 1980, ratified by the popular referendum in 1982 during the military rule. Junta rule के दौरान ये
अप्रूव हुआ था. दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ टर्की. इट इज इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ अतातुर्क. सबसे पहले उसी तरीके से इट्स written and codified, the same old cliche. It has 7 chapters, 177 articles. Secular constitution. It's based on the principles of Kemalism, separation of state and religion. Rigidity. So ये they want to. The third point is rigidity. कि constitution क्या rigid है या नहीं है. So the constitution is partially rigid in a way that it's not as rigid as the US constitution, जिसको amend करना बहुत मुश्किल है. But nonetheless, it's still rigid. It's not very easy either. तो आर्टिकल 175 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसेस बताता है. उसके तहत ग्रैंड नेशनल असेंबली, जो इसकी पार्लियामेंट है, यूनिकेमरल लेजिस्लेचर है टर्की का, तो द ग्रैंड नेशनल असेंबली कुड इनिशिएट अमेंडमेंट्स विद द सपोर्ट ऑफ 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स. तो अगर 1/3 ऑफ मेंबर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्लोर पे आनी चाहिए, तो वो फ्लोर पे आ जाएगी. ये पास होने की बात नहीं हो रही है, इनिशिएट होने की बात हो रही है. सो 1/3 ऑफ मेंबर्स कुड इनिशिएट, फ्लोर पे आ जाएगी. अब दो तरह के सिनारियो हो सकते हैं अमेंडमेंट के लिए. जब वो आ गई अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट्स या तो 2/3 मेजोरिटी से रेटिफाई हो जाएगी. नोट, यूएस में ये सिस्टम 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ दोनों हाउसेस में, अपर हाउस और लोअर हाउस में, प्लस 3/5 ऑफ स्टेट्स रेटिफिकेशन, जो उसकी 50 स्टेट्स हैं उसमें से 3/5 स्टेट्स रेटिफाई करें तब जाके अमेंडमेंट होती है. तो यहाँ पर वो सिर्फ 2/3 मेजोरिटी चाहिए. वो भी चूंकि उनका हाउस एक है तो इनको तो सेनेट की भी चाहिए भी नहीं. तो इट्स ईजियर टू डू दी अमेंडमेंट कंपेयर टू यूएस. हाउएवर दूसरा मॉडल इसका, दूसरा जो इसका मॉडल है, दूसरा सिनारियो है, वो ये हो सकता है कि यहाँ तो वो जब असेंबली में वो जब 1/3 मेंबर्स ने इनिशिएट किया, 1/3 मेंबर्स के इनिशिएटिव से, तो यहाँ तो वो 2/3 मेजोरिटी से नेशनल असेंबली की पास हो जाए, या उसे फिर पब्लिक रेफरेंडम में डाल दिया जाए. तो देयर आर वेरियस अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन डन थ्रू referendum. There are few through referendums, more through the assembly. However, amendment process पे एक कदगन ये है कि जो केमालिस्ट ideological and cultural reforms हैं, they are exempt from alterations. कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोक्लेम करता है, लेकिन प्रैक्टिकली उनमें भी बहुत सी चीज़ों में चेंजेस आ रही हैं एवर सिंस द राइज ऑफ तैयब उर्दुगान. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सो फार बीन अमेंडेड 19 टाइम्स. इन 19 टाइम्स में जो अमेंडमेंट हुई है उनमें 16 दफ़ा वो ग्रैंड नेशनल असेंबली से हुई है और 3 ऑफ देम वर रेफरेंडेड थ्रू. So yeah, the 3 of them through constitutional referendum हुए हैं 2007 में, 2010 में, 2017 में. ये 3 दफ़ा रेफरेंडम के जरिए हुआ है, पब्लिक रेफरेंडम के जरिए. बाकी 16 दफ़ा ये नेशनल असेंबली के जरिए हुआ है. अमेंडमेंट्स के नतीजे में जो ओरिजिनल 177 आर्टिकल्स हैं उनमें से तकरीबन 117 of them have been amended overall. So a lot of the constitution has changed. It has changed a lot since its inception in 1982. And the 2017 was very significant as well. और इसका फीचर ये है कि इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है. ग्रैंड नेशनल असेंबली इज द लेजिस्लेचर, 5-year टर्म. पोस्ट 2000, इससे पहले इसकी 4 साल की टर्म होती थी, लेकिन पोस्ट 2017 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसकी 5 साल की टर्म हो गई है. President had immense executive powers and had more influence in Council of Ministers than Prime Minister. जब Prime Minister की पोस्ट हुआ करती थी pre-2000 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट की पावर प्राइम मिनिस्टर से विजावी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन अब तो प्रेसिडेंट की पोस्ट ही अबॉलिश हो गई है 2017 की अमेंडमेंट के बाद. द प्रेसिडेंट कुड ब्लॉक द वे ऑफ लेजिस्लेशन एंड डिसॉल्व द ग्रैंड नेशनल असेंबली. ये अभी भी कैन. A comprehensive and well-knit system of distinct military, administrative and state courts. ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से, बिल्कुल जिस तरह फ्रेंच मॉडल है, फ्रांस में जो जुडिशरी का मॉडल है मोर और लेस वही मॉडल हमें टर्की में भी मिलता है. तो इसीलिए मिलिट्री कोर्ट्स को निकाल दें अगर, तो ये समझें ये पाकिस्तान वाला सिस्टम थोड़ा उधर वो भी है, लेकिन एक ऑर्डिनरी कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स टर्की में भी उसी तरीके से हैं. सो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के तरीके से सही रहता है. जुडिशरी बिल्कुल सेपरेट है, एग्जेक्टिव अलहदा है, लेजिस्लेचर अलहदा है. अब तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है चूंकि, वो इसलिए इसके पास बहुत एक अच्छी चेक्स एंड बैलेंसेस डेवलप हो जाते हैं. This used to be true but no longer, so you can just skip this. There is judicial review. Constitutional council जो है वो
जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, विल डिस्कस दैट लेटर. From parliamentary to presidential system, prime minister and ministers are part of grand national assembly. These were because of prime minister की post abolish हो गई है, and prime minister used to be majority leader. और आप इधर लिखेंगे फिर के however post 2017 amendment the post of prime minister has been abolished. The ministers and prime minister were subject to vote of no confidence and accountable to the assembly, और ये they were changed to presidential system now. और इसकी डिटेल्स जो हैं वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, वो हम अभी जब 2017 की अमेंडमेंट को डिटेल में देखेंगे तो वहां पढ़ेंगे, तो वो वाली चीजें फिर आप इधर ऐड कर सकते हैं. सो अगर क्वेश्चन सिर्फ फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट फीचर्स ऑफ टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन पे आता है तो वो 2017 अमेंडमेंट्स की चीजें आप बोरो करके इधर लगा सकते हैं इन रिस्पेक्टिव हेडिंग्स के नीचे. इट्स अ यूनिकैमरल सिस्टम. 1961 का जो उनका पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था वो बाइकैमरल था, लेकिन 1982 के अंदर सिर्फ एक सिंगल हाउस ही कर दिया गया और सेनेट अबॉलिश हो गई. 4 से 5 साल हो गए 2017 के रेफरेंडम के बाद. राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन, सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस, बट दे आल्सो टॉक अबाउट द ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजंस एज वेल. The underlying philosophy of fundamental rights subservient to the requirement of justice and secular ideology, कि आपके जो fundamental rights हैं वो जो कंट्री की जस्टिस जुडिशियल और सेक्युलर नेचर है उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए के साथ साथ चलेंगे. Right to form political parties. Anyone who is 21 years or older could form political party, which was reduced to 18 years age in 2017 referendum. Political Parties Act है, उसके तहत एक लॉ जो एग्जिस्ट करता है वहां पर, उसके तहत कोई भी पार्टी बेसिस ऑफ रिलीजन पे नहीं बन सकती, सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ एडहेयर करना और नेशनल सॉलिडारिटी प्रमोट करनी. प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 119 है, नेशनल डिजास्टर या इकोनॉमिक क्राइसिस की सूरत में लग सकता है. आर्टिकल 120 ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बेसिकली कैबिनेट है उसको टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन सिचुएशंस ऑफ वायलेंस एंड केओस ये ऑथराइज किया है कि वो ये चीज कर सकता है. एग्जांपल 2016 से 2018 के दरमियान जब हमारी आंखों के सामने ये तो बिकॉज इट्स अ वेरी रिसेंट इवेंट, तो ये पुर्तगाल के खिलाफ फेल्ड कू अटेम्प्ट हुई थी. अ सेक्शन ऑफ मिलिट्री, नॉट द होल मिलिट्री, अ पार्ट ऑफ मिलिट्री डिफेक्टेड एंड ट्राइड टू अटेम्प्ट अ कू ऑन टर्की व्हिच वाज हॉल्टेड, व्हिच वाज ओवरथ्रोन. तो एवर सिंस दैट टर्की में स्टेट ऑफ इमरजेंसी रही फॉर 2 years और उसके नतीजे में टर्की में पर्जेस भी शुरू हुई, which I will refer to later as well and which you should read as well. Constitution early before 2017 amendment, ये मैं pre-17 amendment बात कर रहा हूँ. 4 किस्म की extraordinary rules की बात करता था. एक martial law की, दूसरा state of emergency, तीसरा mobilization और चौथा situation of war. Martial law has been abolished after 2017 amendment and all 3 forms जो बाकी 3 forms थी उनको एक फॉर्म सिंगल फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया है इन द टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन. सो नाउ इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ओनली वन फॉर्म ऑफ इमरजेंसी. Imposition of martial law. Article 122 of the Constitution granted the military to impose martial law under the circumstances beyond the control of civilian government. However, ये बड़ा एक यूनिक फीचर था टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन का. यूज्ड टू बी अ वेरी यूनिक फीचर बिकॉज एक डेमोक्रेटिक कंसेंट थी मार्शल लॉ की, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेट करता था. ग्रैंड नेशनल असेंबली जो उनकी पार्लियामेंट है वो मार्शल लॉ अप्रूव कर सकती थी इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस एंड अलाउड द मिलिट्री टू गवर्न. However, this was abolished in 27 constitutional amendment बिलखसूस, क्योंकि जब से फेल्ड कू अटेम्प्ट हुई थी तो हर रास्ता उसका जो है इस चीज का वो ब्लॉक करने की उसके बाद कोशिश की गई. अब हम बात करेंगे 2017 के कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम को. दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम एज वेल. इसके वो हामी भी मिलेंगे आपको, इसके आपको तनकीद करने वाले भी मिलेंगे. तो इट्स अ वेरी मिक्स्ड सिस्टम क्योंकि इसमें एक्चुअल रियलिटी ही रिफ्लेक्ट कर गया. इट्स बोथ गुड एंड इविल, इट्स बोथ गुड एंड बैड. So सबसे पहले context and background. One of the greatest transformation since the inception of the republic. There are इस amendment के जरिए 18 constitutional reforms हुई हैं. Since 2007 referendum of electoral reform, जब 2007 में के referendum में पिछली amendment हुई थी, even though 2010 में भी हुई है बीच में जो, लेकिन हम 2007 के जो electoral reforms थे उनके उसके नतीजे में जो कोalition गवर्नमेंट्स बन रही थी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट डिफरेंट पार्टीज के आ रहे हैं, पार्लियामेंट डिफरेंट तरीके से पार्टी की बन रही है, तो बड़ी फ्रेजिल मखलूत हुकूमतें बन रही थी कोalition गवर्नमेंट. सो देयर हैव बीन 65 कोalition गवर्नमेंट सिंस 2007. सो इन 13 years, in 10 years there were 65 coalition governments. That's a lot. So to avoid this future political stalemate,
they passed this amendment. Public referendum में 51.4% voted in favor and 48.6% voted against it, which was also first reason of its controversy because एक तो state of emergency में ये referendum हुआ, दूसरा बहुत ज़्यादा rejected ballots थे और उसमें rigging का बहुत बड़ा claim था, so वो भी बाद में हम देखते हैं. It minimized the role of military in the wake of failed coup attempt in 2016 and the purge that followed. तो ये टर्किश जो पर्जेस हैं इनके मुतालिक ये मैंने दो आपको आर्टिकल शेयर किए हैं, इनसाइड टर्कीज पर्ज एंड टर्कीज ग्रेट पर्ज. दोनों न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं, इनको आप जरूर पढ़ें, आपको आइडिया होगा कि व्हाट मीन बाय पर्ज. बेसिकली बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में, मिलिट्री में, सिविल सर्विस में, गवर्नमेंट में, एकेडेमिया में लोगों को निकाला गया जो ये बुर्दुगान की फिलोसफी के साथ एग्री नहीं करते थे या गवर्नमेंट के बहुत क्रिटिकल थे, तो उनको निकाला गया. दैट्स व्हाट पर्जेस आर. तो ये आप इसको ज़रा मज़ीद डिटेल में देख लें. अमेंडमेंट्स कौन सी थी? अमेंडमेंट में सबसे पहली चीज़ तो ये कि पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्रिएट किया. प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट एबॉलिश की गई. प्रेसिडेंट अब पहले भी सेरेमोनियल नहीं था, लेकिन अब उसे मुकम्मल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी बना दिया गया. प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड एंड मैक्सिमम 2 years टर्म विद 5 years टेन्योर. पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए कि प्रेसिडेंट क्या इन्हांस किए हैं, तो उसकी सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करेंगे. आर्टिकल 104 में ये दी गई हैं. प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट. He has the power to appoint and sack vice presidents and ministers. Multiple vice presidents exist करते हैं टर्किश सिस्टम के अंदर. So president के पास अब पावर है, जिस तरह presidential systems में होता है कि वो appoint भी कर सकता है ministers को, vice presidents को, और sack भी कर सकता है. He has the power to dissolve parliament with the approval of 3/5 members. 3/5 members जो पार्लियामेंट के हैं उनकी अप्रूवल के साथ वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है. लेकिन अगर वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करता है तो ही विल आल्सो रिलिंक्विश हिज ओन पोस्ट. तो उसको खुद भी ही विल आल्सो लूज हिज प्रेसिडेंसी और वो प्रेसिडेंसी विल आल्सो बिकम सब्जेक्ट टू री इलेक्शन. Unlike United States, where vice president is also directly elected, vice president to be selected by the president, there is no line of succession in case of no president. So अमेरिका में presidential line of succession होती है. आप जो मर्जी करें, जितने मर्जी प्रेसिडेंट्स की डेथ हो जाए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन अपने टाइम पे होगा 4 साल बाद. तो प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन है कि अगर यूएस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है, जैसे कि ट्रूमन बना था जब एफडीआर की डेथ हुई थी. उसी तरीके से और यहाँ जब निक्सन ने रिजाइन किया तो उसका सक्सेसर ने उसकी पोजीशन ली. तो और अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर ऑफ द सेनेट बिकम्स प्रेसिडेंट. देन अगर वो उसकी भी डेथ हो जाए तो हाउस स्पीकर की, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की. तो ये 12 लाइन ऑफ सक्सेशन है. आई थिंक इट इज 12 कि 12 लोग हैं इन लाइन ऑफ सक्सेशन के. अगर मरता जा रहा है प्रेसिडेंट, वो भी मरता जाए, वो भी मर जाए, तो उनमें पास ऑन होती रहती है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट नंबर 12 because it's very sacred number in Shia theology as well, and that too concerning line of succession. एनीवेज टर्की में लेकिन ये मॉडल नहीं है. टर्की में अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो कोई लाइन ऑफ सक्सेशन नहीं है. सो असूमिंग कि अगर ऐसा हो तो री इलेक्शन होगा. ही प्रपोजेस फिस्कल बजट टू द पार्लियामेंट. अब उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स की हम बात करें तो प्रेसिडेंट फ्रीड फ्रॉम द पार्लियामेंट्री वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. तो पहले जो था कि पार्लियामेंट्री वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए प्रेसिडेंट को आउस्ट किया जा सकता था, तो वो पार्लियामेंट का चेक प्रेसिडेंट पे खत्म हो गया. इस तरीके से प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से नहीं निकाल सकती. प्रेसिडेंट के पास पावर टू वीटो द लेजिस्लेशन है, लेकिन टू ओवरकम अ प्रेसिडेंशियल वीटो द पार्लियामेंट नीड्स टू अडॉप्ट द सेम विल विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. अच्छा, सिंपल मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में फर्क होता है. सिंपल मेजॉरिटी से मुराद ये है कि जितने लोग उस टाइम प्रेजेंट हैं उनमें से 50% प्लस 1. तो फॉर इंस्टेंस अगर उस नेशनल असेंबली, ग्रैंड नेशनल असेंबली की टोटल तादाद 600 है असल में, और टोटल हाउस में प्रेजेंट 400 लोग हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी वुड मीन 201. बट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी डज नॉट मीन 200. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन्स 301. तो अगर कोई कानून पास हुआ है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पहली दफा कानून पास हो सकता है. सो लेट्स से 201 लोगों ने वोट किया, 400 लोग प्रेजेंट थे हाउस में, टोटल 600 की मेंबरशिप और 400 लोग उस टाइम प्रेजेंट थे. 400 में से 201 ने वोट किया तो वो लेजिस्लेशन पास हो गई. वो लेजिस्लेशन पास हो गई, प्रेसिडेंट ने उसको वीटो कर दिया. उसने अगर अब वीटो कर दिया है तो अब उसको दोबारा पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी नहीं, अब उन्हें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस मेंबरशिप चाहिए, विच इज एटलीस्ट 301. तो ये चेक काउंटर चेक डेवलप किया इन्होंने. The president can call referendums and issue decrees to regulate the executive. President के पास लेकिन ये पावर है कि वो रेफरेंडम्स में चीजें भेज सकता है.
अब ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट पावर है। यूएस के अंदर अगर प्रेसिडेंट जो चाह रहे मैसेजेस भेजे उसने लेजिस्लेचर को कन्विंस करने की कोशिश की, अगर लेजिस्लेचर नहीं लेजिस्लेट करता तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन टर्की में वो रेफरेंडम में भेज सकता है वो चीज़ें, और डिक्रीज भी इशू करता है। इफ लेजिस्लेशन मेक्स अ लॉ अबाउट द सेम टॉपिक दैट प्रेसिडेंट इशूज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो अगर एक ही चीज़ के बारे में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मौजूद है प्रेसिडेंट का और पार्लियामेंट्री लॉ भी मौजूद है, तो डिक्री जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो इनवैलिड हो जाएगी प्रेसिडेंट की, और पार्लियामेंट्री लॉ जो है वो वैलिड होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 104। जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, अब ये बहुत सिग्निफिकेंट पावर है, और यहाँ वो दिस इज द कैच वेयर पीपल क्रिटिसाइज दिस अमेंडमेंट। तो जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एग्जिस्ट करती है फ्रांस में, जो कि जुडिशियल रिव्यू करती है, चेक करती है लेजिस्लेचर के लॉज को अगेंस्ट ऑन द टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टर्की के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एग्जिस्ट करती है एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल पे। उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के 15 टोटल मेंबर्स हैं, और उनमें से 12 प्रेसिडेंट खुद डायरेक्ट अपॉइंट करता है, सिर्फ 3 नेशनल असेंबली करती है। तो टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डायरेक्टली प्रेसिडेंट के थंब के नीचे है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने आगे से पार्लियामेंट के लॉज का फैसला करना है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर व्हाट लॉज गेट पास्ड इन द पार्लियामेंट। तो एक उसका बहुत बड़ा एक चेक प्रेसिडेंट का मौजूद है, तो एक बड़ी ऑटोक्रेटिक पावर है प्रेसिडेंट के हाथ में। काउंसिल ऑफ जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स, ये बेसिकली एक बॉडी एग्जिस्ट करती है उधर, जैसे हमारी बार काउंसिल है, तो वहाँ पर एक बॉडी एग्जिस्ट करती है कि जो लीगल प्रोफेशन और जुडिशरी से रिलेटेड मैटर्स को डील करती है। इसके टोटल 13 मेंबर हैं। प्रेसिडेंट इनमें से इसके अंदर 4 मेंबर्स को अपॉइंट करता है फ्रॉम सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस, 7 मेंबर्स इसके बाकी जो है वो ग्रैंड नेशनल असेंबली अपॉइंट करती है हाई कोर्ट और लॉयर से, एक मिनिस्टर ऑफ जस्टिस इसका मेंबर होता है और एक मिनिस्टर अंडर सेक्रेटरी इसका मेंबर होता है। तो 4 मेंबर्स बेसिकली प्रेसिडेंट इसके अपॉइंट रिक्वेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फॉर एनलमेंट ऑफ लॉज। तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में एक तो 15 में से 12 बंदे इसने अपॉइंट किए, फिर ही कैन रिक्वेस्ट दैट कोर्ट फॉर द एनलमेंट ऑफ लॉज पास बाय द ग्रैंड नेशनल असेंबली। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू सी द कैच हियर। अब ये टर्किश जुडिशरी का एक मॉडल मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ये आपने घबराना नहीं है बस इससे। इट्स वेरी सिमिलर टू फ्रांसिस। फ्रांस के मॉडल के मुताबिक कोर्ट ऑफ सेसेशन उनकी ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं जो ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन के केसेस ट्राई करती हैं। फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट काउंसिल जिसे हम फ्रांस में कहते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिलेटेड को डील करती हैं। फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है 1 2, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उनकी डील करती है ये जुडिशियल रिव्यू के केसेस के साथ, और एक उनकी कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट थी जो कि वहाँ पर जुरिस्डिक्शनल ट्रिब्यून था कि जो चेक करता है कि केस किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज जो इनकी है टर्की के अंदर, वो मिलिट्री जुरिस्डिक्शन थी, मिलिट्री कोर्ट्स एग्जिस्ट करती थी, और मिलिट्री के अंदर भी 2 थी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड मिलिट्री ऑर्डिनरी कोर्ट्स। तो इसके अंदर उन्होंने ये किया है कि उसमें अमेंडमेंट किया कि मिलिट्री कोर्ट्स अब टेक्निकली अबॉलिश की हैं, लेकिन वो सिर्फ मिलिट्री के लोगों का अब ट्रायल कर सकती हैं। तो उसकी पावर काफी रिड्यूस की है। Then the third thing is parliamentary reforms. इस अमेंडमेंट के अंदर लॉज ऑफ द पार्लियामेंट टू स्टैंड सुप्रीम ओवर प्रेसिडेंशियल डिक्रीज इन केस ऑफ क्लैश हमने भी डिस्कस किया है। पार्लियामेंट कैन ओवरराइड प्रेसिडेंशियल वीटो विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 301, ये भी हमने डिस्कस किया है। पार्लियामेंट की सीट्स इंक्रीज की हैं 500 से 600 तक। पार्लियामेंट्री टर्म एक्सीडेड फ्रॉम 4 to 5 years. पार्लियामेंट अपॉइंट्स 3 members of the कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल और बाकी 12 मेंबर प्रेसिडेंट करता है। इट अपॉइंट्स 7 members ऑफ द बोर्ड ऑफ जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स और बाकी 4 प्रेसिडेंट करता है। He can Parliament can vote to indict the president with 2/3 vote in favor. वो इंडाइटमेंट कर सकता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इंडाइटमेंट होगी उसकी 400 out of 600 वोटर्स प्रेसिडेंट की। पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है वाइस प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, पहले जो टर्की में मॉडल था, ये बेसिकली पार्लियामेंट का चेक इंक्रीज हुआ है, प्रेसिडेंट पे तो नहीं इन अ वे, बट वाइस प्रेसिडेंट, ये स्पेसिफिकली फॉर वाइस प्रेसिडेंट्स एंड मिनिस्टर्स है, कैबिनेट के लिए। पहले था सिस्टम ऑफ इंटरपेलेशन। इंटरपेलेशन सिस्टम में क्या होता था कि पार्लियामेंट जो है वो फॉर्मली रिक्वेस्ट खुद करती थी कि हमने इन्वेस्टिगेशन खोलनी है फलाने मिनिस्टर के खिलाफ, फलाने मिनिस्टर के खिलाफ गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अप्रूव करती थी, तो फिर वो खुली थी, यानी कि खुद ही जो काजी है वो वही मुजरिम है, तो मुजरिम खुद अपनी
को जब तक इजाजत नहीं देगा कि मेरी इन्वेस्टिगेशन हो तो नहीं होगी, तो दैट्स अ वेरी बैड सिस्टम। लेकिन उसकी जगह पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस उसको से रिप्लेस कर दिया। पार्लियामेंट नाउ डिटेक्ट्स कैबिनेट एंड वाइस प्रेसिडेंट विद पार्लियामेंट्री रिसर्च, पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन, जनरल डिस्कशन एंड रिटन क्वेश्चंस, वो हम उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस भेजते हैं। उसके अंदर लिमिटेशन भी आर्टिकल 98 के अंदर के आई थिंक 15 डेज के अंदर रिटन जो क्वेश्चन भेजा है पार्लियामेंट ने उसका जवाब देना है मिनिस्टर्स ने। बोथ प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट कैन रिन्यू इलेक्शंस, यानी दोनों असेंबलियां डिसॉल्व कर सकते हैं। इफ प्रेसिडेंट डिसाइड्स ऑन द रिन्यूअल ऑफ इलेक्शन, रिन्यूअल इलेक्शन यही है कि आप असेंबली डिसॉल्व करके नए इलेक्शंस कॉल कर रहे हैं, तो अगर प्रेसिडेंट करता है तो उसकी प्रेसिडेंसी विल बी ओवर एज वेल, एंड पार्लियामेंट कैन डिसाइड ऑन द रिन्यूअल इलेक्शन बाय 3/5 360 ऑफ द डिस्प्यूट। दोनों केसेस में 360 ऑफ द डिप्यूटीज चाहिए होंगे। इन आइदर केस प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस विल बी हेल्ड जॉइंटली इलेक्शंस होंगे, दोनों की फेट आपस में कर दिया ताकि अननेसेसरीली कोई प्रेसिडेंट असेंबली ना डिसॉल्व करे। तो ये पाकिस्तान में जो मॉडल था 58(2)(b का, उससे गालबन उन्होंने सीखा है कि ये मॉडल इम्प्रूव होना चाहिए। और अगर हमारा भी इसी तरीके का निज़ाम होता है कि सिर्फ पार्लियामेंट नहीं सदर भी जाएगा, तो शायद कभी ये पावर 58(2)(b की यूज ना होती। The Parliament can approve, extend, remove or shorten the emergency declared for no more than 6 months by the President. President जो emergency declare करेगा उसको वो approve कर सकती है, extend कर सकती है for 6 months या remove कर सकती है according to this article. Electoral reforms, the age limit for forming a political party in candidacy वो 21 से 18 साल कर दी गई है. Conditions for necessary military service is abolished, ताकि क्योंकि military काफी entrenched थी system के अंदर और वो failed coup के बाद उसका concern बहुत ज़्यादा हो गया. Individuals with relations to the military would be ineligible to run for elections. Parliamentary and presidential elections to be held on the same day with presidential elections going for a runoff. ये basically 2 round system जो मैंने आपको फ्रांस में बताया था कि फर्स्ट राउंड में कोई भी बंदा अगर 50% से ज़्यादा वोट नहीं ले सकता, जो कि नहीं ले पाते, तो दूसरे राउंड में उनका जो पहले टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं उनका दोबारा इलेक्शन होगा। तो यही निज़ाम टर्की में भी है, फ्रांस वाला। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू हैव एंडोर्समेंट्स। अगर आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करना है तो कोई भी फ्रिवलेस कैंडिडेट नहीं आ सकता, उनको एंडोर्समेंट चाहिए उस पार्टी की, एक या एक से ज्यादा पार्टीज की जिन्होंने एटलीस्ट 5% वोट्स पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में लिए हों और प्लस कम से कम 100,000 वोटर्स लिए हों। The elected president no longer needs to terminate their party membership if they have one. पहले ये था कि प्रेसिडेंट को चूंकि एपॉलिटिकल होना चाहिए तो वो पार्टी मेंबरशिप उसे टर्मिनेट करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो अपनी पार्टी मेंबरशिप रख सकता है। The president cannot renew the elections while being investigated. So for instance अगर पार्लियामेंट ने इंक्वायरी खोली हुई है प्रेसिडेंट के खिलाफ और वो जो उनके पास पावर है कि वो इंडाइट कर सकती है 400 आउट ऑफ 600 मेंबर्स अगर वोट करें, तो अगर उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो प्रेसिडेंट कहे कि मैंने तो जाना ही है, मुझे पता है मैंने जाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ पार्लियामेंट डिसॉल्व कर देता हूँ और फिर दोबारा इलेक्शन लड़ लेता हूँ, इंडाइटमेंट से तो बच जाऊंगा। लेकिन फिर ये नहीं कर सकते कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द असेंबली। नो टर्म लिमिट फॉर एमपीज, 2 टर्म लिमिट फॉर प्रेसिडेंट। Judicial reforms क्या की गई? Military courts were abolished except the ones charging military personnel under conditions of war. Presidential decrees are subject to the judicial review by the Constitutional Court. Catch इसमें ये है कि मैंने आपको बताया कि 12 मेंबर जो हैं 15 में से Constitutional Court के, आईनी अदालत के, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। An element of laws of Grand National Assembly by the Constitutional Court on the appeal of President. This is the most important thing इसके अंदर। अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो सबसे पहले जो क्रिटिक थी इस 2017 के इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, वो ये थी कि 1 मिलियन वैलिड बैलेट्स को इनवैलिड करा दिया गया। दैट 1.5 मिलियन इनवैलिड बैलेट्स वर एक्सेप्टेड एज वैलिड इन फेवर ऑफ द रेफरेंडम। अगर ये इनवैलिड बैलेट्स जिनको इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने इनवैलिड करार दिया, अगर इनको वैलिड कंसिडर ना करती टर्किश रियासत, तो अमेंडमेंट पास नहीं होनी थी और रेफरेंडम हुआ था स्टेट ऑफ इमरजेंसी के अंडर। रोल ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन इंक्रीज टू स्टेबलाइज द गवर्नमेंट बट इज फियर दैट प्रेसिडेंट माइट बिकम डिक्टेटोरियल। तो प्रेसिडेंट की पावर्स एनहांस हुई। With president still the leader of the majority party in parliament, he can exert massive influence over the parliament through hand-picked MPs. President has a strong patronage in constitutional court, 12 out of 15 members appoint करता है, with which he can keep parliamentary legislation under his thumb. Although the president has accumulated power, but the checks and balances like parliamentary override, a veto, indictment of president, the cabinet judicial review, though very weak, make steps in favor of a stable democracy. So mix इसके results हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस पे अच्छी तरह रीडिंग करें ताकि आपको इस लेक्चर को बेशक बार बार सुने और इन रीडिंग्स को करें। आपने एक दफ़ा ये लेक्चर सुना है, अब जो मैं आपको रीडिंग्स आगे शेयर कर रहा हूँ वो पढ़ें और फिर इस लेक्चर को दोबारा सुने, तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। सो वन आर्टिकल इज दिस,
The other is this. I don't remember exactly कौन से papers में, but if you will just write the name of the author and the title तो आपको Google पे ये articles मिल जाएंगे. इसके अलावा if you're interested तो मैंने भी 2017 के elections पहले इनके amendment से पहले द नेशन में आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर कि किस तरीके से एक प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावर्स अमास की हैं इस अमेंडमेंट के जरिए. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू गाइस रीड दिस आर्टिकल इन द नेशन एज वेल. अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा आर्टिकल मुझे मिला था, बड़ा टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आर्टिकल्स. उसमें बेसिकली उसने आर्टिकल्स लिस्ट किए हैं जो रिफॉर्म हुए हैं और उनको सिंपल लैंग्वेज में आगे से एक्सप्लेन किया कि व्हाट डू दे मीन. सो आई वुड वेरी 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 स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू रीड दिस लाजमी. और फिर आप एंड पे आप रिलैक्स करें. और समरी के लिए ये 3 वीडियोस छोटी छोटी आपने ये तीनों वीडियोस देखनी. इससे आपको यूएस सिस्टम से भी थोड़ा कंपैरिजन पता चल जाएगा. कुछ नहीं लाजमी. और फिर आप एंड पे आप रिलैक्स करें. और समरी के लिए ये 3 वीडियोस छोटी छोटी आपने ये तीनों वीडियोस देखनी. इससे आपको यूएस सिस्टम से भी थोड़ा कंपैरिजन पता चल जाएगा. कुछ नई बातें भी पता चल जाएंगी और रिटेंशन भी आपकी इजी हो जाएगी. एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर कि आप ये लेक्चर सुने मेरा. अभी आपने सुना है, इसके बाद वो जो 2-3 रीडिंग्स हैं वो रीडिंग्स करें, ये वाली 3 वीडियोस देखें और उसके बाद ये लेक्चर दोबारा से रिपीट करके देखें. बिकॉज देयर्स लॉट ऑफ थिंग्स दैट माइट बी कंफ्यूजिंग. लेकिन आप जब इसको 2-3 दफ़ा देखेंगे, रेपिटेशन होगी, तो you will have a very good understanding of what this means. Welcome back, ladies and gentlemen. In this lecture, we're going to cover the Grand National Assembly and its powers and functions. So this is the outline, introduction, election process, powers and functions, and then critical analysis. Sorry. So it's a unicameral legislature, as we know. It's a sole body given prerogative of legislature by the constitution. It was founded in Ankara in the midst of Turkish War of Independence from the Ottoman Empire. The parliament was fundamental in creating modern Turkey from the remnants of Ottoman Empire. So it's based on the principle of ideals of Kemalism. Under the constitution of 1961, it was bicameral. हमने पिछले lecture में देखा, but in 1982 it was reverted back to unicameralism. So the election के ऊपर अगर हम आए तो हमने ये भी देखा है पहले कि इसके 600 मेंबर होते हैं और 5-year term के लिए elect होते हैं. But it has 87 electoral districts. And now the immediate question in your mind would be that if there are 87 electoral districts, how come there are 600 members? क्योंकि जितने constituencies होती हैं उतने नुमाइंदे होते हैं. But that is true for single member constituencies. There are some constituencies which are multi-member constituencies. Multi-member constituency में एक constituency में एक से ज़्यादा लोग elect होते हैं. So for instance, एक हल्के में अगर 3 लोगों ने इलेक्ट होना है, 8 लोग इलेक्शन का टेस्ट करें, लेकिन उसमें से 3 लोगों ने इलेक्ट होने, तो जो 3 हाईएस्ट वोट जिन्होंने को मिलेगा वो इलेक्ट हो जाएंगे. तो सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी जनरली एफपीटीपी में होती है, फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम, जो कि पाकिस्तान में फॉलो होता है, दुनिया में जनरली फॉलो होता है. लेकिन टर्की में रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉलो होता है, जो कि मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी वाला होता है. सो पार्टी लिस्ट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और डेहॉन्ट मेथड यूज होता है, जो कि बेल्जियन मैथमेटिशियन है उसने डेवलप किया था. और इस पे हम कोई एक सेपरेट वीडियो भी कभी करेंगे जिसमें हम डिफरेंट जो वोटिंग सिस्टम्स है, ऑल्टरनेट वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल पार्टी रिप्रेजेंटेशन, एफपीटीपी, क्लोज लिस्ट पार्टी सिस्टम, उसको देख लेंगे. आप खुद भी अगर इंटरेस्टेड है तो यूट्यूब करके इनको देख सकते हैं. ये मैंने एक वीडियो अटैच किया जो उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेगी डेहॉन्ट मेथड को, तो वो आप देख लें. Party must win 10% of the electoral votes to send its MPs to the parliament. अगर 10% से कम वोट है तो अगर उसके कोई MPs elect भी हो गया कोई 2-3 जगहों से तो वो पार्लियामेंट में नहीं जा सकेगा. 2 parties won seats in legislature in 2002 में ये 2 parties dominate कर रही थी, 3 in 2007, 5 in 2015 and 4 in 2018. तो ये 4 मेन पार्टीज हैं टर्की के अंदर. कभी कभी वो ना सवाल के अंदर मेंशन भी करते थे कि ऑल्सो मेंशन द मेन पॉलिटिकल पार्टीज. तो ये 4 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं अभी टर्की के अंदर. दिस इज AKP इज द लीड पार्टी और ये उर्दुगान की पार्टी. लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ GNA, it can enact new laws, make alterations when required. After the 2017 amendment, it lost the power to supervise the council of ministers and to
it to issue governmental decrees. However, after the referendum इसकी power override of the presidential veto करने की power absolute majority से आई है. Laws of the parliament to stand supreme over presidential decrees, ये इसी के केस में. Lost the power of vote of confidence after 2017 referendum. लेकिन ये legislative power is supposed to be an executive power और इसकी जगह अब उसके पास indictment की power है parliament के पास. Executive powers. Strict division between legislature and executive has weakened the executive powers of the legislature, क्योंकि अब presidential system आ गया. पहले presidential system नहीं था, parliamentary system था, तो members जो cabinet थी that was answerable to parliament, which is why executive powers parliament की automatically आती थी. जिस तरह बरतानिया में cabinet dictatorship का concept है, चूंकि parliamentary system है तो cabinet की बहुत पावर होती है फिर, तो इन दैट वे पार्लियामेंट की पावर एग्जीक्यूटिव पावर बढ़ गई है किस्म, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव जो है वो कैबिनेट है. लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर वो एग्जीक्यूटिव पावर जनरली फिर प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट को चली जाती हैं. अप्रूव्स द ratification of international treaties, ये इसकी एग्जीक्यूटिव पावर है. पावर टू ऑथराइज वॉर, ऑथराइज टू यूज मिलिट्री टू फुलफिल ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कॉम्पिटेंट टू अलाउ फॉरेन ट्रूप्स इन टर्की और गिव देम फ्री पैसेज. जो इंटरनेशनल लॉ के अंडर ऑब्लिगेशंस हैं वो पार्लियामेंट उसका ऑथराइज करती है टू यूज़ मिलिट्री. फॉर इंस्टेंस टर्की में यूएस की काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं पुराने एग्रीमेंट्स के, तो वो इन्फोर्स कराती है पार्लियामेंट. इट इज़ कॉम्पिटेंट टू अलाउ फॉरेन ट्रूप्स इन टर्की और गिव देम फ्री पैसेज, ये भी इसी के केस में एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं. कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस, अच्छा इसकी एग्जीक्यूटिव पावर में एक ये भी कि वो इंडाइट कर सकती है प्रेसिडेंट को. ये इसकी जुडिशियल पावर भी है, वैसे एग्जीक्यूटिव पावर भी हो सकती है. Control over finances, debates, approves and rejects the budget proposed by the president, makes decision regarding the printing of currency. Finance and Appropriation Act इसके तहत ये करती है. Judicial powers, it appoints 3 members of the Constitutional Court, आपको पता है बाकी 12 president करता है. 7 members to the Board of Judges and Prosecutors through a 2-round voting system, बाकी 4 जो है वो president करता है. ये indicts president, vice president and ministers. उसके अलावा इनका जो parliamentary investigations हैं उसने वो वाला सिस्टम अब है in place. Emergency powers, parliament approves the state of emergency declared by the president. The parliament can extend, remove or shorten it. State of emergency can be extended for up to 6 months at a time, except during war where no such limitation will be required. Every presidential decree issued during a state of emergency will need an approval from the parliament. तो एक पार्लियामेंट्री चेक इस सूरत में मौजूद है इमरजेंसी केस में. ये हमने पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस किया. दिस इज व्हाई आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, एंड बिकॉज वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, बट यू गाइज आर ऑलरेडी familiar with this content, so I'm quickly going through it. Martial law has been abolished and all of the forms have been merged into single forms of emergency. ये भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है. Parliament approves the state of emergency declared by president. A parliament can extend more or shorten it. ये हम 6 months. This is the same content from the previous slide. Parliamentary inquiries हमने डिस्कस कि interpellation की abolish करके this is replaced with parliamentary investigation. तो जिसमें पार्लियामेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स को रिटन क्वेश्चंस भेज सकती है, उनसे आंसर्स डिमांड कर सकती है, उनके अलावा इंक्वायरीज कर सकती है. Critical analysis, it can be argued that Parliament has been strengthened after 2017 national movement to keep check on President. Power of overriding vetoes, indicting the President, Cabinet have increased the influence of Parliament, but the President having the seat of the party leader can still away the deputies. तो ये इसकी positives हैं जिसमें हमें नजर आता है कि Parliament strengthen हुई है. ये वो negatives हैं जिनमें Parliament weak हुई है. प्रेसिडेंट vis-a-vis द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल जुडिशियल रिव्यू, जो हमने पिछली दफा डिटेल में डिस्कस किया था, उसके ऊपर चेक रख सकता है. यूनिकैमरल लेजिस्लेशन डज नॉट जस्टिफाइबली रिप्रेजेंट द डिफरेंट फैक्शन ऑफ द टर्किश नेशन. तो टर्की को भी एक बाइकैमरल फेडरल रिपब्लिक होना चाहिए रादर देन यूनिलैटरल यूनिटरी स्टेट. सो दैट्स ऑल फॉर today's lecture in Turkey. I hope this lecture was helpful to you guys. Please leave your feedback in the comment section regarding the Turkish political system. I hope you guys